Church is a place where weaknesses are turned into strength. कलीसिया एक ऐसी जगह जहाँ पे कमजोरियां ताकत में बदल जानी चाहिए। It's the workshop of God, ये एक काम करने की जगह है प्रभु की, where God personally moves and works on every life. जहाँ पे प्रभु खुद से आता है और एक एक के जीवन में काम करता I है। don't know of any other place like church. मुझे कोई दूसरी जगह नहीं पता है कलीसिया के जैसी। Jesus said, I will build my church. यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। Do you realize that Jesus himself is the builder of the church? क्या आप सोच सकते हो कि यीशु मसीह खुद कलीसिया को बनाता है? Think about it. He did not give any angel any authority to build the church. आप ये सोचिए कि परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को ये काम नहीं दिया कि तू जाके कलीसिया बना। Jesus himself is building church. यीशु मसीह खुद से होके कलीसिया को बना रहा है। Church is you and I together. कलीसिया आप और मैं हूँ सब एक साथ। We are the members of the body of Christ. हम परमेश्वर के देह के हिस्सा हैं। I am confident. That's why Paul was confident in Philippians chapter 1 verse number 6. प्रेरित पौल फिलिपियो 1 उसके 6 में काफी कॉन्फिडेंट He थे। says, I am confident of this very thing. वो कहते हैं कि मैं इस बारे में काफी कॉन्फिडेंट हूँ He who began a good work in you will also finish it. कि जिसने तुम में काम शुरू किया है वो पूरा भी करेगा। Hebrews chapter 12 verse number 2 says, Jesus is the author and the finisher of our faith. हिब्रानी 12 का 2 कहता है कि परमेश्वर शुरुआत भी करता है, अंत भी वही करता His है। name is Alpha and Omega. उसका नाम अल्फा और ओमेगा He है। is the beginning and the end. वो शुरुआत भी है, अंत भी वही है। Something beautiful about Jesus is, if he begins something, he is committed to make sure he will finish it well. एक सुंदर सी बात यीशु मसीह के बारे में यह है कि जो वो शुरुआत करता है वो अंत भी अच्छे से करता So in है। your life, if you're going through challenges or confusion, don't worry about it. अगर आपके जीवन में आप किसी समस्या के द्वारा जा रहे हो तो चिंता ना करो, Jesus is the builder. यीशु मसीह बनाने वाला है। Can you imagine Jesus, when he takes a project to build, there is no power that can stop him. आप सोच सकते हो कि यीशु मसीह जब किसी काम को लेता है पूरा करने के लिए तो कोई सामर्थ्य उसे रोक नहीं सकती। Book of Colossians says, everything that we behold, everything that is seen and that is unseen was created in him, by him, for him. कोलोशियंस का बुक कहता है कि जो चीज हम देख पाते हैं या जो चीज हम नहीं भी देख पाते वो सारी बातें यीशु मसीह ने बनाई है। Everything was created in Christ for him. हर एक चीज यीशु मसीह में बनाई गई थी और उसी के लिए बनाई गई Can you थी। imagine the master builder is building your life? क्या आप सोच सकते हो जिसने ये सारी चीजों को रचा है वो आपके जीवन को बना रहा है, The master builder is building your church. कि वो प्रभु आपके जीवन को कलीसिया को बना रहा Paul है। writes in 2 Corinthians, he says it this way, we are co-laborers with Christ. प्रेरित पौल दूसरे कोरिन्थियों में कहता है कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में काम करते हैं। We are not laboring by ourselves. हम खुद से ही काम नहीं कर रहे The हैं। beauty of Christian life is, I don't have to live this life alone, मसीह जीवन की एक सुंदरता यह है कि हमें अकेले ये जीवन नहीं जीना है, but he lives his life through me. पर यीशु मसीह उसका जीवन हमारे द्वारा जीता है। That's the beauty of Christian life. वो सुंदरता है मसीह जीवन का। Today morning, I want to talk to you about what a life God is calling us for. आज की सुबह मैं आपसे बांटना चाहता हूँ कि कैसे जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। If you open your Bibles to Genesis chapter 18, अगर हम उत्पत्ति 18वें अध्याय को खोलें, we're going to look to a scripture passage that you all are familiar with. हम एक भाग को पढ़ेंगे जो आप सभी को पता है। And this scripture passage, every time I read, और हर बार जब मैं ये भाग को पढ़ता हूँ it stirs up my heart for prayer. वो मेरे दिल में एक इच्छा को जगाती है प्रार्थना करने की। Jesus said it this way, यीशु मसीह ने ऐसे कहा my house will be a house of prayer for all nations. कि मेरा घर पूरे जगत के लिए प्रार्थना के लिए जाना जाएगा। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, The vision Jesus has for the church जो दृष्टांत परमेश्वर के हृदय में है कलीसिया के लिए is that my house, कि जो मेरा घर है, number one thing, he calls church his house. पहली चीज की वो कलीसिया को अपना घर बोलता है। He says, my house, वो कहता है मेरा घर, he says, shall be वो बनेगा a house of prayer for many nations. एक प्रार्थना का घर बनेगा, मेरा घर सारे राष्ट्रों के लिए, For all nations. पूरे सारे राष्ट्रों के Can we लिए। read Isaiah 56 verse number 7? हम यशाया 56 वर्स 7 पढ़ेंगे। It's a beautiful scripture passage. काफी सुंदर सा वचन है ये। Isaiah 56 verse number 7 says, I will bring them to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer.
उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित In करूंगा। other words, दूसरे शब्दों में the house where prayers happen, कि जिस घर में प्रार्थनाएं होती है joy is present. वहां पे आनंद होता है। The Bible declares, वचन बताता I है will bring them in my holy mountain, कि मैं उनको अपने पवित्र पर्वत पे ले आऊंगा and then I will do something. और फिर मैं कुछ करूंगा। I will fill their hearts with joy in my house of prayer. मेरे प्रार्थना के घर में मैं उनके हृदय को आनंद से भरूंगा। I think in the whole world, मैं ये सोचता कि पूरे जगत में the address of happiest people should be the house of God. कि जो खुश जो लोग होते हैं उनका जो एड्रेस है वो परमेश्वर के घर में होता है। David understood this mystery. दाऊद ये मिस्ट्री को समझ He गया। said, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. दाऊद ने कहा कि मैं काफी आनंदित हो गया जब मुझे कहा कि चलो परमेश्वर के घर में चलते Why हैं। was David happy to go into the house of the Lord? दाऊद क्यों खुश था परमेश्वर के घर जाने के लिए? He never said, I was happy when they said, let's build a palace for you. उसने ऐसे नहीं कहा कि मैं काफी खुश हो गया जब उन्होंने कहा पैलेस बनाते हैं। He never said, I was happy when they said, King, you got much spoil. कि दाऊद ऐसे नहीं बोला मैं तो काफी खुश होगा कि अरे हमने काफी सारी चीजें जीत ली Or you है, had a great victory. कि हमने काफी बड़ी जय पाई है। But the Bible says, he said, I was joyful when they said, let us go to the house of the Lord. पर वचन कहता है दाऊद ने कहा मैं काफी खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा चलो परमेश्वर के घर में चलते हैं। There is something about the house of the Lord. कुछ तो बात है परमेश्वर के घर के बारे That में। is the vision of Jesus. वही यीशु मसीह का दृष्टान It है। should be a place वो एक जगह होनी चाहिए where mourning is turned into dancing. कि जहाँ पे रोना हंसने में और नाचने में बदल जाता है। House of God is a place परमेश्वर का घर एक ऐसी जगह है where tears turn into joyful laughter. जहाँ पे रोना हंसने में बदल जाता है, Where disappointment turns into his appointments. जहाँ पे निराशा बदल जाती है उसकी संधि में, Where failures turn into success. जहाँ पे हमारी हार उन्नति में बदल जाती Where है, weakness turns into strength. जब हमारी कमजोरी ताकत में बदल जाती Oh, है। house of the Lord is a place परमेश्वर का घर एक ऐसी जगह है where what enemy has done in my life, I can run to the house of the Lord and I can be saved. कि शत्रु ने अगर मेरे जीवन में कुछ तो किया तो मैं उसे लेकर परमेश्वर के घर में जा सकता हूँ And I can be saved. और मैं बचाया जाता हूँ। May I recommend you? मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, That is the vision for the house of the Lord. यही परमेश्वर का दृष्टान है उसके घर के लिए। Church is not a place only for meeting, greeting, eating. कलीसिया एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सिर्फ मिलना है, खाना है, बस सहभागिता में आना है। Church is a place कलीसिया एक ऐसी जगह है of transformation. जहाँ पे बदलाव आता है, Where lives are changed. जहाँ पे जीवन बदलते हैं, Where life is transformed. जहाँ पे जीवन बदल जा But जाता that है। will only पर happen ये तभी होता है if the priority of the house is prayer. अगर वो ऐसा होगा जब जो घर है परमेश्वर का जब वो प्रार्थना करेगा। If the priority of the house is prayer, अगर पहला स्थान प्रार्थना का है the कलीसिया में result is joy. तो उसका जो रिजल्ट आता है वो है आनंद, The result is peace. तो उसका रिजल्ट आता है पीस, The result is answers to the prayer. और तो उसका रिजल्ट आता है कि प्रार्थना को उत्तर आता है। It's sad when church is busy with many activities, काफी निराशा की बात है कि कलीसिया काफी सारी चीजें करती है But no कभी-कभी prayer. पर प्रार्थना नहीं करती। My friend, I want to encourage you. मैं आपको एनकरेज करना चाहता The हूँ, dream Jesus has for his church जो सपना यीशु मसीह का कलीसिया के लिए है is that this will be a house of prayer to nations. कि ये जो घर होगा वो प्रार्थना का घर बनेगा सारे राष्ट्रों के लिए। Ask yourself this question. खुद से एक सवाल करिए Am I being part of the house of prayer? कि मैं जो परमेश्वर के प्रार्थना का घर है क्या मैं उसमें सहभागिता लेता हूँ, Or am I a house of complaint? कि या फिर मैं कुड़कुड़ाता रहता हूँ? Am I a house of prayer? क्या मैं एक ऐसा घर हूँ जहाँ पे प्रार्थना होता है, Or am I a house of worries? कि मैं एक ऐसा खुद का घर हूँ जहाँ पे सिर्फ चिंताएं ही हैं? Am I a house of prayer? हम क्या प्रार्थना का घर है Or am I a house of tension? कि हम सिर्फ चिंताओं में ही रहते हैं? What am I turning into? मैं कैसा बन रहा हूँ? The vision Jesus has for my life जो दृष्टांत यीशु मसीह का मेरे जीवन के लिए is है I will be a house of prayer. कि मैं प्रार्थना का घर बनूंगा, That I will be a house of prayer. कि मैं प्रार्थना का घर बनूंगा। Now understand one thing. एक बात समझिए, Jesus is building that. यीशु मसीह ये बना रहा है। Something beautiful about एक सुंदर सी जो बात है, Jesus loves to do यीशु मसीह जो करने को उससे जो अच्छा लगता है is prayer.
वो है प्रार्थना। Let me tell you something. एक बात बताना चाहता हूँ, In the heavens, we see worship is happening all the time. स्वर्ग में हम देखते हैं कि आराधना होती रहती है। So when Jesus came on the earth, तो जब यीशु मसीह धरती पे आया, he brought one activity from heaven on earth. तो एक जो स्वर्ग में चीज होती थी वो उसे धरती पे ले आया। He was talking to Samaritan women in John chapter 4. वो सामरी स्त्री से बात कर रहा था यूहन्ना 4 अध्याय And में, he said to that woman, और उस स्त्री से कहा, from now on, अभी से true worshippers will rise who will worship Father in spirit and truth. कि सच्चे आराधक खड़े होंगे जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। That which happens in heaven, जो स्वर्ग में होता है, Jesus brought it on earth. यीशु मसीह उसे धरती पे ले आया। From now on. अभी से, That means before that, इसका मतलब इससे पहले, there was no worship in spirit and truth. उससे पहले आराधना आत्मा और सच्चाई में नहीं होती थी। That means इसका मतलब है when David worshipped, कि जब दाऊद ने आराधना की, when psalmist worshipped, जब वो भजन संहिता वाला when आराधना कर रहा था, Asaph worshipped, जब ऐसा वर्शिप कर रहा था, it wasn't spirit and truth. तो वो आत्मा और सच्चाई में नहीं कर रहा था। But when Jesus said to Samaritan women, पर यीशु मसीह ने जब सामरी स्त्री को ये कहा, he said, from this time forth, उसने कहा कि अभी से आगे तक, from now on, अभी से people will worship Father in spirit and truth. कि लोग पिता की आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाई में। Think about what was happening in heaven all the time. आप ये सोचिए स्वर्ग में हर बार क्या हो रहा था। Jesus introduced on the earth यीशु मसीह उससे धरती पे ले आया to worship in spirit and truth. कि आराधना होगी सच्चाई और आत्मा में। And then there was one activity that was always happening on the earth. और एक चीज थी जो धरती पे हमेशा हो रही थी, That was prayer. वो थी प्रार्थना। All throughout the generation, people were praying. जो लोग थे पीढ़ी पीढ़ी में प्रार्थना कर रहे थे। It's amazing that the Bible says in Hebrews chapter 4 वचन कहता है हिब्रानी 4 में that when Jesus became our high priest, कि जब यीशु मसीह याजक बना, after his resurrection, he ascended in heaven and became our high priest, sat at the right hand of the Father. यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तब वो स्वर्ग में गया, वो महायाजक बना और परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा। And you know what he does? और उसके बाद पता है क्या करता है? Bible says he intercedes for us. और वचन कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी That करता which है। was happening on the earth, जो धरती पे हो रहा था, that one activity he takes to heaven. वो एक चीज है जो यीशु मसीह स्वर्ग में ले And जाता he's है, currently doing that, और अभी भी वो कर रहा है। interceding वो है मध्यस्थी for करना, you and I at the right hand of the Father. आपके और मेरे लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ My में। friend, I want to encourage you. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, Worship and prayer, they go together. आराधना और प्रार्थना एक साथ चलती है। Worship, आराधना, worship the Lord आराधना कीजिए प्रभु की and pray to God. और प्रार्थना करिए उसे। We must go together. वो सब साथ में चलनी That is चाहिए। the vision God has for the house of prayer. वही परमेश्वर का दृष्टांत है उसके कलीसिया के लिए। My friend, I want you to understand मैं चाहता हूँ एक बात समझे, why prayers are important. क्यों प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण I है। will show you in the scripture. मैं आपको वचन में दिखाऊंगा। Let's go to Genesis chapter 18, आइए उत्पत्ति 18वें अध्याय में verse जाएं, number 1 onwards. पहले वचन से। The Bible says, then the Lord appeared to him, meaning Abraham, by the terebinth tree of Mamre, as he was sitting in the tent door in the heat of the day. इब्राहिम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। It's amazing that the Lord appeared to him. काफी अद्भुत सी बात है कि परमेश्वर इब्राहिम को प्रकट हुआ, Lord appeared to him in the heat of the day. कि जो धूप थी, धूप के समय पे परमेश्वर प्रकट He हुआ। was sitting outside his tent and the Lord appeared to him. वो तंबू के बाहर बैठा था और तभी परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। Verse number 2, so he lifted his eyes and looked, and behold, 3 men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the ground. और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे, और उसने उन्हें देखकर तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू की तरफ वो दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत करके उन्हें कहने लगा, And said, my Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant. हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। Please let a little water be brought and wash your feet and rest yourself under the tree. मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आपके पाँव को धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें आप। And I will bring a morsel of bread, and you may refresh your hearts
and that you may pass by inasmuch as you have come to meet your servant. And they said, do as you have said. फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। Now think about this. इस बारे में सोचिए, It's such a beautiful scripture passage काफी सुंदर सा वचन है। that one regular morning, Abraham is sitting outside his tent door, एक साधारण सी सुबह है, इब्राहिम तंबू के बाहर बैठा है and then he's looking out. और वो बाहर देख रहा है, And what he sees suddenly, 3 men walk near his tent door. और अचानक से देखता है कि 3 पुरुष उसके तंबू के पास I आए। think it's symbolic of Father, Son, and Holy Spirit. वो जो 3 पुरुष है वो दर्शाता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। And they came near him. और वो उनके पास आए, He looked at them. वो उनको देखा, Amazing, he recognizes them. और अद्भुत सी बात है कि इब्राहिम ने उन्हें पहचाना। He runs to them. वो उनके पास दौड़ा, He says, "My Lord," वो कहता है, हे प्रभु, and he bows down to them and worships और them. वो दंडवत करता है, उनकी आराधना करता And है constrain them to stay there. Don't go. और उनको बोलता है, जाओ मत, रुको यहाँ पे। He said, "Let me go and bring some water, some food for you." वो कहता है कि मुझे जाने जो और खाना और पानी लाने दो आपके And लिए। then he said something very incredible. और उसके बाद कुछ तो अद्भुत सी बात कही। No one else said like that. ऐसी बात किसी ने पहले कही नहीं This थी। is what he says. देखो क्या कहा, Comfort ye your hearts, after that you shall pass on, for therefore are you come to your servant. और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आप आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हो। In other words, you know what Abraham said to him? दूसरे शब्दों में इब्राहिम क्या कह रहा था? He said, "God, I know you have come to me. वो कह रहे कि प्रभु तू मेरे पास आया I know है, you have come to your servant, तू तेरे दास के पास आया so है, that you may comfort your heart." ताकि तू तेरे हृदय को तृप्त कर सके। Think about it. इस बारे में सोचिए Does God need comforting? कि परमेश्वर को तृप्त होने की जरूरत है क्या? In NKJV it says that you may refresh your heart. जो NKJV ट्रांसलेशन है उसमें कहा है कि तेरे हृदय को तू तृप्त कर दे, ताजा कर ले। Does God need refreshing in his heart? क्या परमेश्वर को उसके हृदय को ताजा करने की Does जरूरत God है? need comfort in his heart? कि यीशु मसीह को परमेश्वर को उसके हृदय को तृप्त करने की I think जरूरत है। Abraham was sitting at the tent door, इब्राहिम जब वो तंबू पे बैठा था and today when he looked at God, और जब उसे प्रभु को देखा, he recognized something. उसने एक बात देखा, I think he looked at the face of God, उसे प्रभु के चेहरे को देखा and he said, "Something is not right today. और बोला कुछ तो ठीक नहीं है आज, Today he is disturbed. कुछ तो ठीक नहीं है उसके There हृदय is some में, heaviness on his heart." कुछ तो बोझ है उसके हृदय He में। runs to him and he says, "God, और वो कहता है, जाके प्रभु stay here. तू इधर रुक जा, For this reason you came to meet your servant, तू इसी कारण से तू तेरे दास से मिलने आया है, that you may comfort your heart." ताकि तू तेरे हृदय को तृप्त कर सके। This verse tells me one thing, ये वचन मुझे एक बताता है that when God was in need of comfort, कि जब ये प्रभु को उसके हृदय को तृप्त होने की जरूरत थी, he didn't go to heaven. वो स्वर्ग नहीं गया। No one in heaven could bring comfort to his heart. कोई भी स्वर्ग में उसके हृदय में सांत्वना नहीं ले पाया। Angels surround him all the time, स्वर्गदूत हर बार उनके आगे पीछे घिरे हुए रहते worshiping him हैं, and saying, "Holy, holy, holy," all the time. आराधना करते वक्त बोलते हैं तू पवित्र है, पवित्र है, But they cannot touch his heart पर वो उनके परमेश्वर के हृदय को स्पर्श नहीं कर like सकते Abraham can. जैसे इब्राहिम कर सकता है। No one can bring comfort to his heart. कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के हृदय को सांत्वना नहीं So दे God सकता। comes down to his friend. तो प्रभु आता है खुद के दोस्त से मिलने। Remember about Abraham, the Bible says he is friend of God. आपको पता है वचन कहता है कि इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त था। What happens when you're disturbed or you're heavy? जब आपके हृदय में आप बोझ में होते हो तो क्या होता है? You look for a friend. आप एक दोस्त को ढूंढते हो। You want to open your heart to a friend. आपको आपके हृदय को खोलना होता है उस दोस्त You के go सामने। to your trustworthy friend and say, "Man, I'm disturbed." आप आपके भरोसे वाले दोस्त के पास जाते हो और बोलते हो कि मैं चिंता में हूँ, Now बोझ में हूँ। God is like that here. और वैसे ही प्रभु भी आया He's है, disturbed about something. वो किसी तो भी बात में चिंता कर रहा And है। Abraham says, "For this reason you came. और इब्राहिम बोलते हैं इस कारण से तू आया है मेरे Sit पास, down, Lord. तू बैठ जा प्रभु, Let me wash your feet. मुझे तेरे पैर धोने Let me दे, feed you, God. मुझे तुझे खिलाने Let दे me give you a कुछ, drink." मुझे तुझे कुछ पीने के लिए देने दे। This reason you came, इसीलिए तो तू आया मेरे that पास, you may comfort your heart. ताकि तू तेरे हृदय को तृप्त कर सके। My friend, I want to ask you, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, there is a place in spiritual life with God एक जगह है आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ, where a man can qualify to comfort his heart. जहाँ पे एक मनुष्य प्रभु
प्रभु के हृदय को तृप्त कर सकता है। There is a level of spirituality that we all can come up to, हमारे आत्मिक जीवन में एक स्तर है जहाँ पर हम आ सकते हैं, where we are not only the house of prayer unto all the nations, but we start by comforting his heart. जहाँ पे हम सिर्फ एक ऐसा घर नहीं है जो प्रार्थना करता है राष्ट्रों के लिए, पर हम यीशु प्रभु के हृदय को सांत्वना दे The सकते हैं। Bible says वचन कहता है that God came to Abraham to refresh his heart. कि प्रभु इब्राहिम के पास आया ताकि प्रभु का हृदय तृप्त हो सके। Look at Exodus chapter 31 verse number 17. What does Bible say? It is a sign between me and the children of Israel forever. वह मेरे और इजराइलियों के बीच में सदा एक चिन्ह रहेगा। For in 6 days the Lord made heavens and earth, and the 7th day he rested and was refreshed. क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपने जी ठंडा किया। Question: एक सवाल है, is God exhausted that he needs refreshing? क्या परमेश्वर थक गया है कि उसको उसके हृदय को ठंडा करने की जरूरत है? He is not a man. वो मनुष्य नहीं है, He is a limitless power. उसके पास काफी He सामर्थ है, is spirit. वो एक आत्मा है, He does not need refreshing. उसको उसके हृदय को तृप्त करने की जरूरत नहीं But the है। Bible says पर वचन कहता है on the 7th day when God rested, कि 7वें दिन जब प्रभु ने विश्राम किया, 7 days something happened. 7वें दिन पे कुछ तो हुआ। He was not refreshed on day 1. पहले दिन पे उसने तृप्त नहीं किया हृदय को। Second day, like day 1 when he created things, he was not refreshed. पहले दिन पे जब सृष्टि को बनाया तब उसने हृदय को तृप्त नहीं किया। Second day he was not refreshed. दूसरे दिन पे तृप्त नहीं Third किया। day he was not refreshed. तीसरे दिन पे नहीं किया। But on the 7th पर day, 7वें दिन पे something happened. कुछ तो हुआ, It refreshed the heart of God. वो परमेश्वर के हृदय को तृप्त किया। Church, do you realize that Sundays when you come to worship the Lord, क्या आप जानते हो कलीसिया, जब आप रविवार को प्रभु की आराधना करने आते हो, the first primary thing that happens is the heart of my Father is refreshed. जो पहली चीज जो होती है वो है कि मेरे पिता का हृदय तृप्त होता है। That's why we should not neglect coming to fellowship in the church. इसीलिए जब हमें कलीसिया में आने का मौका मिलता है तो हमें आना चाहिए। That's why Paul says, do not neglect fellowship of brethren. इसलिए प्रेरित पौल कहता है कि सहभागिता में, संगति में आना चाहिए आपको। God is present. प्रभु उधर है। Wherever 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst, he says. जब 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते मैं उनके बीच में होता हूँ। I have a question for you. मुझे आपके लिए एक सवाल है, If you were told that today 10 o'clock Jesus will meet you, अगर आपको कहा जाता कि आज 10 बजे यीशु मसीह आपसे मुलाकात लेने वाला what है, time will you come? आप कितने बजे आओगे? If physically Jesus is going to meet you at 10 o'clock, अगर कुछ साक्षात प्रभु 10 बजे आके इधर मिलने वाले हैं आपसे, what time will you come to meet him? तो आप कितने बजे उससे मिलने आओगे? 12? 12 बजे? I think we all will be there before time. मुझे लगता है हम वक्त से पहले वहां पे हाजिर रहेंगे। But Sunday services, पर जब रविवार की सभा होती है 90% people come late. 90% लोग देर से आते हैं। You know why? आपको पता है क्यों? Because they are going to a ritual traditional church. क्योंकि उनको सिर्फ रिचुअल के लिए, ट्रेडिशन के लिए कलीसिया जाना They है। do not have a revelation of the presence of God. उनको प्रगटीकरण नहीं है प्रभु की उपस्थिति के They बारे do में। not understand वो नहीं समझते the 7th day कि 7वें दिन पे God rested कि प्रभु ने विश्राम किया and was refreshed. और अपने जी को ठंडा किया। You know what was refreshing to God? आपको पता है परमेश्वर के हृदय को ताजा किस चीज ने किया? Not the 7th day, 7वें दिन ने नहीं किया, but the fellowship of Adam. जो सहभागिता थी आदम के साथ उस चीज ने। God created mankind on the 6th day, परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन पे बनाया। first day of Adam, पहला दिन जो आदम का था, 7th day of God परमेश्वर का 7वां दिन in creation. जो सृष्टि बनाने की थी, 7th day of creation जो सृष्टि बनाने का 7वां दिन is था, not the 7th day of Adam. जो 7वां दिन आदम का नहीं है। Adam was created on the 6th day. आदम 6वें दिन पे बनाया गया था। So 7th day, Adam is the first day. तो 7वें दिन जो सृष्टि की थी वो आदम का पहला And दिन था। Genesis 1 tells us, and God and man rested that day. उत्पत्ति 1 बताती है कि परमेश्वर और मनुष्य ने उस दिन पे आराम किया। Something beautiful. कुछ तो सुंदर सी बात है। God's week started with work, परमेश्वर का जो हफ्ता है वो काम से शुरू हुआ, but man's week started with rest. पर जो मनुष्य का हफ्ता है वो आराम से शुरू हुआ।
Let this revelation get in your heart. ये प्रकटीकरण आपके हृदय में आने दो। God's week starts with work, परमेश्वर का हफ्ता काम करने से शुरू होता है, but your and my week starts with rest. पर आपका और मेरा हफ्ता आराम से शुरू होता है। Rest in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आराम Rest in the करना, fellowship of God. उसके साथ सहभागिता The में आराम Bible करना, says that refreshed God. और वो चीज ने उसके जी को ठंडा किया। Fellowship with mankind refreshed God. प्रभु के हृदय को ठंडा तभी हुआ जब उसने मनुष्य के Sunday साथ morning when सहभागिता you get की। up and start getting ready to come to church, जब रविवार को आप उठ के तैयार होना शुरू होते हो, is your heart getting excited? I'm going to go and meet the lover of my soul. क्या आपका हृदय उत्सुक हो जाते कि अरे मैं मेरे जी को प्यार करने वाले से मिलने जा रहा I हूँ, am going to go and see him who is worthy of all my love, all my devotion. मैं उसे देखने जा रहा हूँ, उससे मुलाकात करना चाह रहा हूँ जो सारी चीजों के योग्य है। I'm going to go and pour out my love and adoration to him. मैं जाऊंगा और अपना सारा प्रेम उसके पैरों पे उंडेल He दूंगा। loves me, he cares for me. वो मेरे लिए प्यार करता है, मेरा ख्याल रखता Do you है। prepare emotionally for that? क्या आपके हृदय को तैयार करते हो उससे मिलने Or के are लिए? you just thinking about, oh man, today I have to go to church. क्या आप ये सोचते रहे आज कलीसिया जाना Oh, है, it's very cold. बहुत ठंडी है, Oh, it's very cloudy. यहाँ पे बहुत ही बादल छाया Oh, हुआ today है, there is fog. आज बहुत फॉग है, Oh, today water didn't come. आज पानी नहीं आया, Children are not ready. बच्चे तैयार नहीं You है। have all the excuses why not to come. आपके पास सारे कारण है नहीं आने के लिए। Get a better why you should be in the house of God. आपके पास एक अच्छा कारण ढूंढिए कि क्यों कलीसिया में आना And there चाहिए, is no other better why और कोई भी अच्छा कारण नहीं है that इससे I go to bring joy to the heart of Father. कि कारण ये है कि मैं परमेश्वर के हृदय को आनंद देने के लिए कलीसिया जा रहा हूँ। I go to meet the very purpose for which I was created. मैं उस प्रभु से मिलने जा रहा हूँ जिस कारण से मुझे बनाया गया है। I'm not just going to go and give my shopping list to him. मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ रविवार को कि मेरी शॉपिंग लिस्ट प्रभु को दे दूं। I am going to bring comfort to his heart. मैं जा रहा हूँ ताकि उसके हृदय को मैं ठंडा कर सकूं। Do you realize आप ये समझ पा रहे हो क्या that in the story of prodigal son, कि जो उड़ाऊ पुत्र था उसके कहानी में the whole house was busy with activities, कि पूरा जो घर था वो बिजी था काम करने but में, father was sitting at the gate longing for the son's return. पर पिता वो गेट पे बैठा था, वो रुक रहा था कि मेरा बेटा कब लौट आएगा। Do you see what is in the heart of father? क्या आप देख पा रहे हो कि प्रभु के हृदय में क्या है? Servants are working. जो काम करने वाले वो काम कर रहे His हैं, heart is not in that. पर उसका हृदय उनमें नहीं है। Operations are happening. काम तो हो रहा है, His heart is not in that. पर उसका हृदय काम में नहीं His है। heart is longing for that one son who is far away from him. उसका हृदय रुक रहा है कि वो बेटा कब उसके पास लौट And आएगा। he's waiting. वो रुका हुआ है, He's longing. वो रुका हुआ He's है, desiring to hold him. वो इच्छा रख रहा है कि उसे पकड़ He's लूं फिर desiring से, to touch him. वो इच्छा रख रहा है कि उसे छू लूं He's एक बार, desiring to kiss him. वो इच्छा रख रहा है कि उसे चूम लूं एक He's बार, desiring to he's longing to hug him. वो रुका हुआ है, तरस रहा है कि उसे पकड़ ले। And the Bible says he saw his son coming far off. और वचन कहता है कि दूर से उसने अपने बेटे को आते हुए देखा, Far वो distance. दूर से, Shabby clothes. बुरे कपड़े पहने हुए थे बेटे ने, Long hair probably. बड़े बाल होंगे शायद उसके, Dirty nails. उसके जो नाखून थे गंदे होंगे, Must be smelly all over because he was staying with pigs. और बदबू आ रही होगी क्योंकि सुअरों के साथ रह रहा था। But from a far distance, पर दूर से father saw him. पिता ने उसको देखा। You know, and what I love about that, और एक सुंदर सी बात जो मुझे पसंद है इस the बारे Bible में, says, वचन कहता है the moment father saw, जब पिता ने उसे देखा he could not control himself. वो खुद को रोक नहीं पाया, He got up from his place वो खुद के जगह से उठा and he ran. और वो दौड़ते हुए Do गया। you know that is the first time in the history of God that God ran? पता है कि इतिहास में पहली बार वचन कहता है कि परमेश्वर दौड़ा। No power on the planet can make him run. कोई भी सामर्थ धरती पे ऐसी है नहीं जो उसे दौड़ा सकती है, No authority can cause him run. कोई भी अधिकार उसे दौड़ा नहीं सकता। His word is enough to do things. उसका वचन काफी है चीजों को करने के His लिए, voice is like many waters. उसका जो आवाज है वो काफी सारे There's पानी a के जैसे flame है, of fire in his eyes. उसके आंखों में आग है, When he speaks, the mountain shakes. जब वो बोलता है तो थरथराने लगती But when he धरती, saw his son come back, पर जब खुद के बेटे को आते हुए the देखा, Bible says he ran. वचन कहता है कि वो He दौड़ा, ran. वो दौड़ा। There is love in his heart that causes him to run for you. पिता के हृदय में प्रेम है आपके लिए
लिए जो उसे मजबूर करते He हैं दौड़ने looks के at लिए, you and runs वो आपको देखता है और दौड़ता है, towards you. आपके तरफ दौड़ता है। But when you want to come to church, पर जब आपको कलीसिया आना when होता you है, want to come to meet him, जब आपको उसे मिलने आना होता do you है, want to run आप दौड़ते हो or do you run away? या फिर आप दौड़ के चले जाते हो वापस? Do you run क्या आप दौड़ते हो to him or from him? उसके तरफ दौड़ते हो कि उससे उसके पीछे से दौड़ते The हो? Bible says वचन कहता है the heart of God was refreshed in the fellowship of man. कि जब वो संगति कर रहा था आदम के साथ तो उसका जी ठंडा हो गया। It's incredible to understand. काफी अद्भुत सी बातें समझने के लिए The delight of God is in the children of man. कि परमेश्वर का हृदय खुश होता है उसके बच्चों में। God delights in the fellowship of his children. परमेश्वर जब संगति करता है उसके बच्चों के साथ उसका हृदय खुश हो जाता है। Do you know one thing? क्या आप एक बात जानते हो? This kind of activity in the heart of God only happens when he is with his sons. उसके हृदय में ऐसी चीजें तभी होती है जब वो उसके बच्चों के साथ रहता है। When he is surrounded with angels, his heart is not touched. जब वो स्वर्गदूत के साथ होता है तभी उसके हृदय में ऐसी चीजें नहीं होती। No other creation can touch his heart the way you can touch. कोई भी सृष्टि उसके हृदय को वैसे नहीं छू सकती जैसे आप और मैं छू You सकती know, we हूँ। sing a song, no one can touch my heart like you do, Lord. क्या आपको पता है मैं गीत गाते कि परमेश्वर मेरे हृदय को कोई वैसा स्पर्श नहीं कर सकता जैसे तू करता है। But God says, do you know, son, that no one can touch my heart like you do? पर प्रभु कहता है कि तेको पता है बच्चे जैसे तू मेरे हृदय को स्पर्श कर सकता है वैसे कोई नहीं कर सकता। This morning, आज की सुबह your presence आपकी जो उपस्थिति है is what God craves for. जो परमेश्वर को चाहिए कि आप उसकी उपस्थिति में आओ, Your presence आपकी उपस्थिति is what he craves for. वो क्रेव करता है उस चीज को। Have you ever thought about it? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है That Jesus left heaven कि यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ा for you? आपके लिए? We want to leave everything for heaven. हमको सब कुछ छोड़ना है उस स्वर्ग के लिए, And he left heaven for you. और उसने स्वर्ग छोड़ दिया आपके और मेरे लिए। Oh, my friend, can you realize how much he loves you? क्या आप समझ पा रहे हो कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है? We gave up everything because somehow we want to go to heaven. हम सब कुछ त्याग देते क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है, He gave up heaven because he wants you. पर यीशु मसीह ने स्वर्ग को त्याग दिया आपके और मेरे लिए। That tells me, वो मुझे बताता है in the eyes of Jesus, यीशु मसीह की आंखों में you are more precious than heaven. स्वर्ग से ज्यादा कीमती आप हो उनकी नजरों में। You are more precious than heaven. आप स्वर्ग से भी ज्यादा कीमती हो उसके नजरों में। And if that is true, और अगर ये सच है, Satan knows that. ये शैतान को पता है। So he knows your absence affects the heart of God. शैतान को पता है जब आप मौजूद नहीं होते हो कलीसिया में उसके साथ तो परमेश्वर का हृदय खुश नहीं होता। So he will create all the distractions in your life तो शैतान आपके जीवन में समस्या को लाता है to keep you away from doing what God likes. ताकि वो आपको दूर रख सके उन बातों से जो परमेश्वर को अच्छी लगती Because he है। knows one thing. उसको एक बात पता है, God loves when he sees you come to him. परमेश्वर को काफी खुशी होती है जब आपको उसके तरफ आते हुए वो देखता है। He sees that God loves when he sees you love each other like he loves you. शैतान देख पाता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है जब उसके पास आते When you हो। are committed for each other and loving each other, God loves it. परमेश्वर को काफी बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे के साथ सहभागिता में आते हो। And so devil tries his best so that you may not do that. शैतान इसीलिए कोशिश करता है कि आप ये चीज कर ही ना पाओ। Have you ever thought about it? आपने कभी ये बारे में सोचा है That your absence in the church affects God? कि जब आप मौजूद नहीं होते हो कलीसिया में परमेश्वर के हृदय को वो चीज अच्छी नहीं लगती? It's like, where is my son? वो कहता है कि मेरा बेटा किधर है? Where is my daughter? मेरी बेटी किधर है? Oh, pastor, wait a minute. Don't you know that God said, I will never leave you nor forsake you. I am with you all the time. क्या पासवान आपको नहीं पता प्रभु तो कहता है कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, तुझे कभी नहीं Oh, त्यागूंगा। yes, I 100% know that. मुझे पता है ये बात। The question is not if God is not close to you. The question is, are you close to him? सवाल यहाँ पे ये नहीं कि परमेश्वर आपके साथ है क्या, सवाल ये है कि आप परमेश्वर के साथ हो क्या। Question is not that God said, I will never leave you nor forsake you. सवाल ये नहीं कि परमेश्वर ने कहा क्या कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा और छोड़ेगा नहीं। The question is, are you willing to live like that? Commitment to Jesus. क्या सवाल ये है कि आप वैसा ही आप परमेश्वर के साथ जी सकते हो क्या? I'll go where you will go. कि तू जिधर जाएगा मैं I जाऊंगा, will do what you will do. मैं वही करूंगा जो तू कर रहा I will है, love what you love. मैं वही प्यार करूंगा Oh, जो तू प्रेम कर रहा है। Can you think about it? Why would Jesus go to synagogues when he was here?
आपको पता है जब यीशु मसीह धरती पे थे तो वो क्यों सिनेगॉग में जाते थे? I mean, there was nobody's more spiritual than Jesus. कोई भी यीशु मसीह से ज्यादा आत्मिक नहीं था उस वक्त में। Nobody could teach better than him. कोई यीशु मसीह से ज्यादा अच्छा नहीं सिखा पा रहा था Nobody तब। knew better than him. किसी को यीशु मसीह से ज्यादा बेहतर नहीं There पता was था। no comparison between Jesus and them. यीशु मसीह और उनके बीच में कोई तुलना भी नहीं थी। No high priest ever saw the Father. Jesus is the Father. कोई महायाजक ने पिता को कभी नहीं देखा था, यीशु मसीह ही पिता थे। Jesus, they don't even recognize Jesus. वो यीशु मसीह को पहचानते भी नहीं है। I mean, if there was any time a dead fellowship, it was the synagogue. जो सिनेगॉग में थी वहां पे जो सहभागिता होती थी वो मरी हुई थी। But in spite of that deadness, वो मरण होने के बाद भी God, Jesus was never absent. परमेश्वर फिर भी वहां पे जाता था और जाना कभी रोकता नहीं था। Have you studied your Bible in the Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, that Jesus was always present in the synagogue? क्या आपने कभी गॉस्पेल को पढ़ा है कि हर बार जब वक्त आता था तो यीशु मसीह सिनेगॉग में जाते थे? Did you realize in the Bible that Jesus said, "Don't you know about me? It is written that the zeal of the house of the Lord has consumed me." यीशु मसीह कहता है कि वचन में कि तुमको पता नहीं है कि परमेश्वर के भवन के लिए मेरा दिल है जो जलता है। Jesus was 12-year-old. यीशु मसीह जब 12 साल के थे And one day he was not found with his parents. और एक बार अपने माता पिता के साथ नहीं थे, And he was in the synagogue. वो सिनेगॉग में थे। After 3 days, his parents found him. 3 दिन के बाद यीशु मसीह की मुलाकात उनके पिता के And you साथ know what हुई। he said to his parents? और पता है उन्होंने माता पिता से क्या कहा? Don't you know? क्या आपको पता नहीं है? He's asking parents, don't you know? वो बोलते हैं माता पिता को पता नहीं है क्या? I am in my father's business. मैं मेरे पिता के काम में हूँ। I am in my father's house. मैं मेरे पिता के घर में हूँ। He looked at synagogue and called it my father's house. उन्होंने सिनेगॉग को देखा और कहा ये मेरे पिता का घर है। When will that kind of witness happen in our heart for the church? ये साक्षी हमारे हृदय में कभी आएगी कलीसिया के लिए That this is my house. कि ये मेरा घर है, This is the house of prayer. ये प्रार्थना का घर है, That this is a place that God moves. ये वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर काम करता This is है, a place that God wants to move in my life. ये वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर मेरे हृदय में काम This करना is the चाहता place I है, get to serve Him. ये वो जगह है जहाँ पे मैं उसकी सेवा कर सकता हूँ। If Jesus could go in such a place, अगर यीशु मसीह ऐसी जगह पे जा सकते there थे were strifes, जहाँ पे झगड़े थे, there were problems. वहाँ पे समस्याएं थी। I mean, high priest was the one who plotted death of Jesus. जो महायाजक थे उसने योजना बनाई थी यीशु मसीह को There was मारने की, betrayal, वहाँ पे ठोकर था, but Jesus didn't stop going. पर फिर भी यीशु मसीह जाना नहीं रोका। Have you thought about apostles never stopped going there? आपको पता है प्रेरित भी थे, वो सिनेगॉग में जाना रुके नहीं, They were full of Holy Spirit. वो पूरी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, They were with Jesus, वो यीशु मसीह के साथ थे, walking and talking with वो Jesus, चलते थे बात करते थे यीशु मसीह के साथ, full of Holy Spirit. पूरा पवित्र आत्मा से भर And गए the थे। Bible says और वचन कहता in है Acts chapter 3, प्रेरित 3 में on the 3rd hour of prayer, when they were going to the temple of God, कि वो तीसरे जो वक्त था वो भवन में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, and they saw a lame और उन्होंने एक लंगड़े को देखा। and said, "Silver and gold we don't have, what we have we give you. Rise up and walk in Jesus' name." वो बोले सोना चांदी मेरे पास नहीं, पर यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जा। And went into synagogue. और फिर वो सिनेगॉग में My गए। question is, मेरा एक सवाल है, if I have that kind of power अगर मेरे पास इतनी सामर्थ है to heal a man on the street, कि एक लंगड़े को मैं ठीक कर सकूं, if I have that kind of authority ऐसा अधिकार अगर मेरे to पास है cast out demons, कि मैं डीमंस को निकाल if सकूं, my shadows can heal people, अगर मेरा जो शैडो है लोगों को चंगा if करता my है, handkerchief can cast out demons, अगर मेरा जो हैंकरचीफ है दुष्ट आत्मा को निकालता है, why should I go to synagogue? तो मैं सिनेगॉग में क्यों जाऊं? What is it that Jesus knew about the house? यीशु मसीह को क्या पता था उस घर के बारे What में? is it that apostles knew about the house? वो घर के बारे में प्रेरितों को क्या पता था? And what is it that I need to know about this house? और ये घर के बारे में ऐसी कौन सी चीजें जो There मुझे is पता करनी something है? that we don't know that they knew. कुछ तो ऐसी बातें जो हमें नहीं पता पर उनको पता थी। They did not neglect उन्होंने नाकारा नहीं। the corporate times of prayer. जब सभी कलीसिया एक साथ आती थी They did सहभागिता not में, neglect उन्होंने नाकारा नहीं इस बात breaking को, of bread together, रोटी को तोड़ना, praying together, एक साथ प्रार्थना करना, worshiping together. आराधना करना एक They साथ। understood one thing. उन्होंने एक बात This समझी is the will of Father कि God. ये पिता की इच्छा है, It delights the heart of Father. ये पिता के हृदय को खुश It करता है, brings joy to the heart of Father. ये उसके हृदय को आनंद You know, देता है। Sunday
service is not just a matter of joy to the pastor, सिर्फ ये कलीसिया में रविवार में आना पास्टर के हृदय को खुश करने but के लिए it is नहीं the है, greatest joy to the heart of Jesus. पर ये यीशु मसीह के हृदय के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। Church is never pastor's vision. कलीसिया है वो पास्टर का दृष्टांत नहीं है, Church is the vision of Jesus. कलीसिया यीशु मसीह का दृष्टांत है। Jesus is the one who said, I will build my church. यीशु मसीह कहता है मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। Hey, सुनिए, I am not your builder. मैं आपका बनाने वाला नहीं हूँ, Jesus is. यीशु मसीह है, He is building. वो आपको बना रहा है। Therefore, I want to encourage you. इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ Be present. कि आप आइए, Give your best. आपका सबसे बेस्ट Be दीजिए, excited. खुश रहिए, Come and build the house of God. आइए और परमेश्वर के भवन को Be a बनाइए। co-laborer with Jesus Christ. हम यीशु मसीह के साथ सहभागिता में Oh, काम करते serve हैं, each other. एक दूसरे की सेवा Love करिए, each other. एक दूसरे को प्रेम करिए। Church is a nice training center. कलीसिया एक अच्छे ट्रेनिंग की जगह है We learn to play music. जहाँ पे हम म्यूजिक बजाना We सीखते learn to हैं, do media. हम मीडिया करना We सीखते learn हैं, to serve. हम एक दूसरे की सेवा करना We सीखते learn हैं, hospitality. हम एक दूसरे को सेवा We करना learn सीखते हैं, forgiveness. हम माफ करना We सीखते learn हैं, how to grow in the character of हम God. परमेश्वर के चरित्र में We बढ़ते learn हैं, to do the will of God. हम उसकी इच्छा को करना सीखते हैं। Church is something which is eternal. एक कलीसिया एक ऐसी चीज है जो अनंत काल के Let लिए me tell है। you one thing. एक चीज बताना चाहता Your हूँ, company is not eternal. आप जिस कंपनी में काम करते हो वो अनंत काल के लिए Your नहीं है, job is not eternal. आपका जो व्यवसाय है वो अनंत काल Your के लिए नहीं government है, office is not आपका eternal. गवर्नमेंट ऑफिस अनंत काल के लिए नहीं है, Church is eternal. कलीसिया अनंत काल के लिए Your है, school is not eternal. जो स्कूल है वो अनंत काल के लिए नहीं Church is है, eternal. कलीसिया अनंत काल के Because लिए है, Jesus is the builder of the church. क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया को बनाता है। Hallelujah. हालेलुया। So encourage each तो other एक दूसरे को प्रोत्साहन करिए to stay together, कि एक साथ आइए, to serve together, एक दूसरे की सेवा करिए, to love together, एक दूसरे को प्रेम to करिए, worship together. एक साथ आराधना For all करें। of that does one thing. ये सब एक ही चीज करती है, Refreshes the heart of God. वो परमेश्वर पिता के हृदय को ठंडा करती है। Exodus chapter 31 verse number 17 we looked. हमने निर्गमन की पुस्तक में ये देखा, It refreshed the heart of God. वो परमेश्वर के हृदय को ठंडा किया। It is a sign between me and the children of Israel forever. वो कहते हैं ये चिन्ह रहेगा मेरे और इजरायलियों के बच्चों के बीच में। God said something that is forever. परमेश्वर ने कहा कि एक चिन्ह होगा वो जो हमेशा के लिए होगा, Between me and you. मेरे और आपके बीच में, And that is our time of resting together. और वो चिन्ह है उनका और परमेश्वर का और हमारे जो एक साथ वक्त है, Our time. हमारा जो वक्त है। God is saying it's a sign. You and I. परमेश्वर कहता है ये चिन्ह है आप और मैं, Forever. एक हमेशा के लिए, It's a permanent sign. वो एक हमेशा के लिए चिन्ह है, That is what refreshes him. और वही चीज उसके जी को ठंडा करती है, That is what refreshes him. वो उसके जी को ठंडा The करती है। first reason why church, पहली कारण जो कलीसिया का है, number one, is it refreshes the heart of Jesus. कलीसिया यीशु मसीह के हृदय को तृप्त करती है। Why? क्यों? It is the bride of Christ. क्योंकि कलीसिया उसकी ब्राइड है, A उसकी दुल्हन है। bridegroom's joy is full to see his bride. दूल्हे का हृदय खुश हो जाता है जब वो उसकी खुद की दुल्हन को देखता है। You are the bride. आप यीशु मसीह की He दुल्हन is the हो bridegroom. और वो दूल्हा है। We come together. हम एक साथ आते हैं, This is where the joy of the Lord is multiplied. यहाँ पे यीशु मसीह का परमेश्वर का हृदय बढ़ता है। You see, आप देख पा रहे हो, this is the place ये वो जगह है where we can capture his heart. जब भी हम उसके हृदय को पकड़ सकते When हैं, you are in heart romance with him, जब हम उसके साथ प्रेम में होते हैं, he opens up his heart वो खुद के हृदय को आपके तरफ and खोलता he है shares with you things. और वो बांटता है उसके हृदय की बातें आपके That साथ। day in Genesis 18, उस दिन उत्पत्ति 18 अध्याय में Abraham was praying इब्राहिम प्रार्थना कर रहा था and something happened. और कुछ तो हुआ। Genesis chapter 18 verse number 17. उत्पत्ति 18 उसका 17। And the Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do? तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ सो क्या मैं इब्राहिम से छुपा के रखूं? Hey, listen, सुनिए, there is a place एक जगह है where future movement of God can be seen. कि ये परमेश्वर जो भविष्य में करने वाला है वो उसको प्रकट करता है। When you come to refresh the heart of God, जब आप उसके हृदय को तृप्त करने के लिए आते हो, the response God will do, जो परमेश्वर आपको फिर बोलता है, should I hide from my child what I am about to do? फिर वो बोलता है कि मैं अपने बेटे को बताऊं या छुपाऊं जो मैं करने वाला हूं।
When we come जब हम आते हैं and refresh his heart, उसके हृदय को तृप्त करते हैं, something happens. कुछ तो होता है, Revelation is given. प्रगटीकरण दिया जाता है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, When you learn to refresh his heart, जब आप सीख जाते हो उसके हृदय को तृप्त करना, something will happen. कुछ तो होता है। He will open up secrets to you. वो उसके हृदय के सीक्रेट्स को खोलना शुरू He will करता है। open up secrets to you. वो आपको सीक्रेट्स बताता है। You have question concerning your tomorrow. आपको सवाल है आपके कल के लिए, You are scared about your future. आपको आपके भविष्य के लिए डर है। Oh, come and refresh the heart of Jesus and watch. He will unveil your tomorrow. आप आइए उसके हृदय को तृप्त कीजिए और देखो वो कैसे आपको भविष्य की बातें बताता है। Should I not tell Abraham what I'm going to do? प्रभु कह रहा है कि क्या मैं इब्राहिम को नहीं बताऊं जो मैं करने वाला हूँ? Then something happens. और फिर कुछ होता है। Next, if you keep reading, verse number 20. और 20वां वचन कहता है, And the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and because of the sin is very grave, I will go down now and see whether they have done altogether according to the outcry against it that has come to me, and if not, I will know. फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया है तो उससे जान लूंगा। So in other words, तो दूसरे शब्दों now में God began to tell Abraham, प्रभु इब्राहिम को बोलता है, the reason that I have come जिस कारण से मैं आया हूँ and disturbed in my heart और मेरे हृदय में चिंता है is I am heading towards Sodom and Gomorrah कि मैं सदोम और गमोरा में जा रहा हूँ, to destroy it. उसको नाश करने जा रहा Because हूँ, its sin has come up to me. क्योंकि उसका पाप मेरे पास आया है। Then the Bible declares, और वचन बताता है, verse number 22, 22 वचन, then the man turned away from there and went towards Sodom, and Abraham stood still before the Lord. सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। Now think about this verse, what happens. इस वचन के बारे में सोचिए, 3 people came. 3 लोग आए। You keep studying the chapter carefully, you will discover in Sodom and Gomorrah only 2 people went, आप अगर पढ़ाई करोगे तो सदोम और गमोरा में सिर्फ 2 लोग गए, not 3. 3 लोग नहीं गए। 3 came to meet Abraham, 3 लोग मुलाकात करने आए इब्राहिम but से, 2 went to Sodom and पर Gomorrah. सिर्फ 2 लोग सदोम गमोरा में गए। But one stood where Abraham was. पर एक वही खड़ा रहा जहाँ पे इब्राहिम था। What does Bible say? और वचन क्या कहता है? Abraham stood yet before the Lord. पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रहा। And the men turned their faces from thence and went towards Sodom. और वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम और गमोरा की ओर जाने लगे। 2 went to Sodom, 2 लोग थे वो सदोम की तरफ गए, but Lord did not go. पर यहोवा नहीं गया। Listen, my friend. सुनिए, I help, Holy Spirit helps you understand. मैं प्रार्थना करता कि पवित्र आत्मा समझने में मदद करे। When God finds a man or a woman who touches his heart, जब परमेश्वर को वो मनुष्य मिलता है जो उसके हृदय को स्पर्श करता है, God will cancel all his appointments and stay with that person. यहोवा जो भी बातें करने जा रहा है उसको सब कैंसिल कर देता है आपके साथ रुकने के लिए। Nothing will be delegated to God anymore. He will stay with that man. परमेश्वर कुछ काम नहीं करेगा और उस व्यक्ति के साथ ठहर जाएगा। The Bible says वचन बताता है, Abraham stood yet before God. इब्राहिम खड़ा रहा यहोवा के सामने। Rest of the team went. पूरा जो टीम था वो चले गया, God did not go यहोवा नहीं गया। because God found a friend यहोवा ने एक दोस्त को देखा who can refresh and comfort his heart. जो दोस्त उसके हृदय को तृप्त कर रहा For था। this reason you came to meet your servant that you may refresh your heart. इस कारण से यहोवा तो अपने दास से मिलने आया कि तू अपने हृदय को तृप्त कर सके। And God chose, yes, Abraham, do what is in your heart. और यहोवा ने चुनाव किया कि इब्राहिम तू वही कर जो तेरे हृदय में है। And the Bible says Abraham stood yet before the Lord. और वचन कहता है इब्राहिम यहोवा के सामने खड़ा रहा। Look at next verse. दूसरा वचन, The Bible says, and Abraham drew near and said, will you also destroy the righteous with the wicked? तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? Think about it. इस बारे में सोचिए। God did not go, God and Abraham alone now. अभी यहोवा और इब्राहिम अकेले हैं। First there were 3 people. पहले 3 लोग थे, Now 2 have left to Sodom and Gomorrah. 2 लोग सदोम गुमोरा के पास गए हैं, And only 2 people are left now. अभी सिर्फ 2 ही लोग हैं, Abraham and God. इब्राहिम और यहोवा। Abraham and God. इब्राहिम और यहोवा। Angels left. स्वर्गदूत चले In गए। Sodom and Gomorrah angels came. स्वर्गदूत चले गए थे सदोम गुमोरा में, But
to Abraham, God stayed. पर इब्राहिम के साथ यहोवा रुक गया। Now listen, I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। A chapter before this, इसके पहले का जो अध्याय there है, was a fight between Abraham's servant and Lot's servant. जो लॉट और इब्राहिम के दास से उनमें लड़ाई हो रही थी। So then Abraham made a consolation. तो इब्राहिम ने एक बात रखी। He said, Lord, it's not good for us to fight. We are family. उन्होंने कहा, लॉट, हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम एक दूसरे से झगड़ा If करें। you go right, I will go left. If you go east, I'll go west. अगर तू दाहिने तरफ जाएगा तो मैं उसके उल्टे तरफ जाऊंगा। So imagine that Lot went to Delhi and Abraham went to Agra. तो आप ये सोचिए कि लॉट जो था वो दिल्ली की तरफ गया और जो इब्राहिम था वो आगरा की तरफ गया, Opposite directions. एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। Now something happens. और फिर कुछ होता है। The cry of Delhi comes to the heart of God and he wants to come and judge that place. जो दिल्ली में जो लोग रो रहे थे उसकी जो चिल्लाए। रोने की आवाज है वो यहोवा के सामने आई। And so God wants to go to Sodom and Gomorrah to destroy it. तो यहोवा को सदोम और गमोरा में जाना उसका नाश करने के लिए, But he comes to Abraham. पर वो इब्राहिम के पास आता है। He has to go to Delhi, but he comes to Agra. उसको जाना दिल्ली है पर आगरा आता है। What happens? His GPS is spoiled? जीपीएस शायद गड़बड़ हो गई यहोवा की। No. ऐसा नहीं हुआ। The Bible says God doesn't do anything on the planet Earth until he shares his secret with his friends. वचन कहता है कि यहोवा धरती पे कुछ भी नहीं करता इससे जब तक कि वो किसी को बताए नहीं हो पाते। So he comes to Abraham. तो वो इब्राहिम के पास आता है And Abraham sees he's disturbed. और इब्राहिम ने देखा चिंता में है And प्रभु। he says, oh God, for this reason you came, that you might comfort your heart. और वो कहता है, प्रभु इस कारण से तू आया ताकि तू तेरे हृदय को तृप्त कर And सके। God says, oh yes, Abraham, I'm going to stay with you. और प्रभु कहता है, सच में तू समझ गया, मैं तेरे साथ रुक I was जाऊंगा। supposed to go there, but I'm not going now. मुझे जाना था वहां पे पर मैं नहीं I'm जाऊंगा। staying here, मैं तेरे Abraham. साथ ही रुकूंगा अभी। With you. तेरे साथ रुकूंगा। This is what is the best thing for me. यही सबसे उत्तम बात है मेरे लिए। I wonder heavens could not comfort his heart. मैं सोच रहा हूँ कि स्वर्ग उसके हृदय को तृप्त नहीं कर पाया। But there is nothing missing, nothing broken, no tears, no sorrow. That is not a place of comfort for God. जो स्वर्ग है जहाँ पे कोई दुख नहीं, संकट नहीं, कोई समस्या नहीं, वो चीज प्रभु के हृदय को सांत्वना But नहीं दे your रही। fellowship is the place of comfort for God. पर आपकी सहभागिता उसके हृदय को तृप्त कर रही है। That's why Paul said, इसीलिए प्रेरित पौल कहते हैं, don't you know that your body is the temple of Holy Spirit and the Spirit of the living God stays in you? कि आप नहीं जानते क्या आपका जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर है और उसकी आत्मा आपके अंदर वास Oh, करती है। God stays in us. परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। Revelation 3:20 said, I'm knocking at the door. If you open, I and Father will come in. प्रगटीकरण उसका जो तीसरा अध्याय वो कहता है कि मैं द्वार पे खटखटा रहा हूँ, खोलेगा तो मैं अंदर आके तेरे साथ रहूंगा। He says in John 15, I will be in you and you will be in me. वो कहता है यूहन्ना 15 अध्याय में कि मैं तेरे अंदर और तू मेरे अंदर We रहेगा। think heaven is our destination. God is saying, no. You are my destination. I am your destination. हमको ऐसे लगता है हमको स्वर्ग जाके बस उधर ही रहना है हमेशा, पर प्रभु कहते हैं कि नहीं, तेको मेरे अंदर रहना है, मेरे को तेरे अंदर रहना है। Heaven is a side item. स्वर्ग ऐसा बाजू की चीज है। What is the real deal is Jesus. जो सच की बात है वो है यीशु मसीह। And the Bible says, और वचन कहता है, Abraham stood before him इब्राहिम उसके सामने खड़ा रहा and said, will you destroy the righteous with the wicked? और वो कहते हैं, धर्मी जन को भी दुष्ट के साथ मार लेगा तू। Look at the next verse, what Bible says. और दूसरा वचन क्या कहता है? And when he said that, Abraham said, peradventure, if there be 50 righteous within the city, will you destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? इब्राहिम ने कहा, कदाचित तू उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच में उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण उसे न छुड़ाएगा? Now think with me for a moment. अब मेरे साथ सोचिए, In the court of God, परमेश्वर के कोर्ट में there is now a hearing happening. एक सुनवाई चल रही है। The court case is happening about Sodom and Gomorrah. और कोर्ट केस चल रहा है सदोम और गमोरा It के is in a ऊपर distant place. और वो दूर की जगह पे चल रहा है। God has come to meet Abraham in another geography. प्रभु आया है इब्राहिम से मिलने दूसरी जगह But पे। the future of Sodom and Gomorrah is now being decided where Abraham is. और सदोम और गमोरा के भविष्य में क्या होगा वो इब्राहिम के साथ मिलकर उसका न्याय Let हो me रहा tell है। you one thing, my friend. मैं आपको एक बात बताना चाहता When हूँ, you come to church, जब आप कलीसिया में आते when you हो, refresh the heart of Jesus, जब आप उसके हृदय को तृप्त when करते he हो opens up his heart to you and pours revelation, और जब वो खुद के हृदय को खोल के प्रगटीकरण देता है,
Suddenly, church is no longer a church of physical gathering, तो कलीसिया सिर्फ लोगों का मेल मिलाप करने की जगह नहीं बन but जाती, it becomes a place where the negotiation happens for the cities of the world. पर यहाँ पे ऐसी बातें होने लगती है कि राष्ट्रों में, सिटीज में क्या होने The वाला है। future of your nation is decided by what conversation happened between God and you in this room. आपके राष्ट्र में भविष्य में क्या होने वाला है वो आपके और परमेश्वर के बीच में बात की जाती है कलीसिया Just में। Abraham, one person, and God, and discovering the future of Sodom and Gomorrah. सिर्फ इब्राहिम और प्रभु वहां पे रुक के बात कर रहे थे कि सदोम और गमोरा के भविष्य में क्या होगा। Listen very carefully. आप ध्यान से सुनिए। I pray that Upper Room Church will be that place मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपरूम कलीसिया एक that ऐसी when जगह God wants बनेगी to do anything in India, कि जब राष्ट्र इंडिया में कुछ that करना हो God प्रभु wants to do को, anything in Asia, अगर एशिया में कुछ प्रभु को that God करना wants to do है, anything in the world, अगर जगत में प्रभु को कुछ करना oh, He है will come to this room. तो वो अपर रूम में आएगा। He will find individuals वो एक व्यक्ति को who ढूंढेगा can bring comfort to his heart, जो उसके हृदय को तृप्त करेगा, and they can discuss the affair of the nation. और वो लोग बात करेंगे कि राष्ट्र में क्या होना Oh, what चाहिए, is going to happen in India will be decided in this room. कि भारत देश में क्या होगा वो इस जगह पे ठहराया जाएगा। If men and women of God stand up in the gap like Abraham stood, अगर आप और मैं वो बीच में खड़े रहे जैसे इब्राहिम खड़ा रहा, this is the purpose of church. यही उद्देश्य है कलीसिया This is का, the vision of church. यही है कलीसिया का दृष्टांत। This is why Jesus said, "My house will be a house of prayer unto nations." इसीलिए यीशु ने मसीह ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना के लिए जाना जाएगा राष्ट्रों के Abraham लिए। says, "If there are 50 righteous, what would you do, God?" इब्राहिम ने कहा अगर 50 धर्मी जन रहेंगे तो क्या करेगा तू? Next verse, दूसरा God वचन, answers. दूसरे वचन में प्रभु कहता है, God says, "That be far from thee to do after this manner, to slay righteous with the wicked, and the righteous should be as wicked. That be far from you, shall not judge of all the earth do right." इस प्रकार का काम करना तुझ से दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों को एक ही दशा हो, यह तुझ से दूर रहे, क्यों सारी पृथ्वी का न्याय न करे। No, the Bible says, "You are the judge of all the earth." क्या सारी पृथ्वी का न्याय तू करता है? The Bible is very clear. वचन स्पष्ट बताता He's है, saying, "You, the judge of all earth." वचन कहता है कि तू पूरे जगत का न्याय करता है। One of the identity of God revealed here is the judge of all the earth. एक परमेश्वर की जो पहचान बताई गई है कि वो पूरे जगत का न्याय करता है। Abraham says, "Will you not do rightly?" और इब्राहिम कहता है कि तू अच्छा नहीं करेगा क्या? Now something happens. और कुछ तो होता है। Next verse, let's look at it. दूसरा वचन देखो क्या कहता And the है। Lord said, यहोवा ने कहा, "If I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare the place for their sake." यहोवा ने कहा यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। Oh, Abraham is saying, "God, if there are 50 righteous in the city, will you spare the city?" इब्राहिम कहते हैं 50 धर्मी जन मिल गए तो छोड़ देगा क्या उस जगह को? Sodom and Gomorrah is there miles apart. सदोम और गमोरा काफी दूर की जगह पे है। Abraham and God are here in a different geography. इब्राहिम और यहोवा इधर अलग से जगह पे है, But their conversation is deciding the future of that city. पर उनकी बातों से ये ठहराया जाएगा कि सदोम और गमोरा में क्या होगा। My friend, God is calling Upper Room Church to become a place of destiny for other cities. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपरूम कलीसिया को बुला रहा है ताकि राष्ट्रों का भविष्य ठहराया What जाए। we communicate with God here will decide the fate of cities of India. जो हम यहोवा के साथ बात करते हैं इस जगह पे वो ठहराएगा कि राष्ट्रों में, सिटीज में क्या हो रहा है। Abraham says, next verse, he says, "If there are 40, Lord, what will you do?" इब्राहिम दूसरे वचन में कहता है 40 धर्मी रहे तो क्या God करेगा? says, "For their sake I will spare them." यहोवा कहता है 40 के लिए वो जगह He को said, छोड़ "God, if there दूंगा। are 30, what would you do?" इब्राहिम कहते हैं 30 होंगे तो क्या He करेगा? said, "For their sake I will spare the city." वो बोले कि 30 लोगों के लिए उस जगह को छोड़ He said, दूंगा। "Lord, but if there are 20, what will you do?" इब्राहिम ने कहा अगर 20 होंगे तो क्या He said, करेगा? "For 20 I will spare the city." उसने कहा 20 के लिए छोड़ दूंगा उस Oh जगह Lord, if को। there are only 10, what will you do? इब्राहिम ने कहा सिर्फ 10 होंगे तो क्या करेगा? For the sake of 10, I will not destroy the city, says the Lord. यहोवा ने कहा 10 के कारण उस जगह का नाश ना Do you see what करूंगा। Abraham is doing? आपको देख रहे हैं इब्राहिम क्या कर रहा है? One day God was so angry with Israel, he said to Moses, "Moses, I'm going to destroy these people and fulfill my promise through you." एक दिन यहोवा गुस्सा हो गया था इजरायली लोगों पे और बोला मूसा को मैं उनको नाश कर दूंगा और मेरे वाचा को
तेरे द्वारा पूरा And you करूंगा। know what Moses did? आपको पता है मूसा ने क्या कहा? He said, God, don't do that. उन्होंने कहा यहोवा ऐसा ना कर, If you're going to do this, अगर तू ऐसा करेगा remove my name from the book of life. जीविका की पुस्तक से मेरा नाम ही निकाल दे। And God changed his mind. और यहोवा ने अपना मन बदल For दिया। one man, Moses, एक ही व्यक्ति मूसा के लिए he spared Israel. उसने इजराइल को छोड़ दिया। There was a man named David. दाऊद नाम का एक व्यक्ति था। In the days of Hezekiah, an enemy rose up against King Hezekiah in Israel. हेzekiah जो राजा था उनके दिनों में शत्रु उनके पास आया And Jerusalem was under siege. और यरूशलेम दबाव में था। That time Hezekiah prayed. और उस वक्त हेzekiah ने प्रार्थना की And God said to Hezekiah, और परमेश्वर ने हेzekiah को बोला Hezekiah, you're a good king. और बोला हेzekiah तू अच्छा राजा I have है, answered your prayer. मैंने तेरी प्रार्थना को उत्तर दिया है। And then God said, Hezekiah, और प्रभु ने फिर कहा I हेzekiah spare your life and your city for the sake of my servant David. कि मैं तेरे जीवन को और तेरे जगह को सिटी को बचाऊंगा दाऊद के कारण। Your one man David, तेरा एक जो व्यक्ति है दाऊद, because of him. उसके कारण। Now David had died long time ago, दाऊद काफी साल पहले मर गया था but the city was spared. पर वो जगह को बचाया गया। For one man Abraham, सिर्फ एक इब्राहिम के whole कारण Israel was spared. पूरा जो इजराइल है बचाया गया। And you know what? और आपको पता है क्या? Here Abraham is standing in gap saying, God, if there are 10 righteous, would you spare Sodom and Gomorrah? और इब्राहिम फिर से बीच में खड़ा रहा है और मध्यस्थी कर रहा है कि तू 10 होंगे धर्मी जन तो बचाएगा क्या? And the Lord said, yes, और यहोवा ने कहा हाँ I'll do that. मैं करूंगा, I'll do that. मैं करूंगा। There is a place that God's heart is comforted, एक जगह है जहाँ पे उसके हृदय को तृप्त किया जाता है, where he can talk to his sons, जहाँ पे अपने बच्चों से बात कर सकता है, where his sons understand his heart. जब उसके बच्चे उसके हृदय को समझ पाते हैं, They become his friend and talk to him. वो उसके दोस्त बन जाते हैं और उससे बात करने लगते I हैं। think Abraham thought, इब्राहिम ने सोचा होगा oh, now, he's going to Sodom and Gomorrah and Lot is there, so Lot will definitely stand for his city. कि इब्राहिम ने सोचा कि परमेश्वर सदोम और गमोरा की तरफ जा रहा है, लॉट उधर रहता है तो वो तो बचा देगा खुद की जगह को। So Abraham didn't bargain after that. उसके बाद उसने यहोवा से कुछ मध्यस्थी नहीं की Now God comes to Lot's place. और यहोवा जो है लूट के घर पे आता है And you know what? Lot didn't do anything. और लूट ने कुछ नहीं कहा। Angel said, pack up your stuff and leave this city. We are going to destroy it. स्वर्गदूत ने लूट से कहा कि अपना बोरा बिस्तरा ले अपने परिवार के साथ निकल And ले। you know what Lot did? और को पता है लूट ने क्या कहा? So thank you very much. He packed up his stuff and walked out. उसने कहा धन्यवाद और अपना सामान लेके निकल गया। There are two kinds of believers. दो तरीके के विश्वासी होते They हैं। both have encounters with God, वो दो लोग परमेश्वर से मुलाकात लेते but हैं their heart conditions are different. पर उनका हृदय अलग होता है। One is only thinking about himself, एक सिर्फ खुद के बारे में सोचता है and another one is thinking of nation. और जो दूसरा है वो राष्ट्र के बारे में सोचता है। What kind of believer are you? आप किस तरीके के विश्वासी हो? Do you come to church only for yourself, आप कलीसिया सिर्फ खुद के लिए आते हो? or you come to church for others? आप दूसरों के लिए आते हो कलीसिया? Abraham stood in gap for Sodom and Gomorrah. इब्राहिम मध्यस्थी में बीच में खड़ा रहा सदोम और It गमोरा was के not लिए। his city. वो उसकी जगह नहीं थी, It was not his people. वो उसके लोग नहीं थे, But he stood. पर फिर भी खड़ा रहा। God is calling us for a higher calling. परमेश्वर हमें वो बड़ी बुलाहट के लिए बुला रहा है। One day when Jesus' heart was heavy एक दिन जब यीशु मसीह का हृदय बोझ से दबा हुआ in the था Garden of Gethsemane, गेत्सेमनी के गार्डन में, he took Peter, John and James with him, उसने पतरस जेम्स यहोना को लिया वहां पे and he went with them. और वो उनके साथ गया And the Bible says और वचन कहता है he began to open his heart to them. वो अपना हृदय खोलने लगा उनके सामने। You know, everybody would open their heart to Jesus, आपको पता है सारे लोग अपने हृदय को यीशु मसीह के सामने खोलते थे but Jesus would open his heart only with very few. पर यीशु मसीह अपना हृदय सिर्फ कुछ लोगों के साथ खोलता था। Are you going to be with the crowd who opens the heart to Jesus, or are you going to be that special person to whom Jesus opens his heart? क्या आप उन लोगों में से होने वाले हो कि जो अपना हृदय यीशु मसीह के सामने खोलते, कि क्या वो व्यक्ति जहाँ पे यीशु मसीह अपना हृदय आपके साथ खोलता I है? pray that upper room will be a place, a sanctuary where God opens his heart. मैं प्रार्थना करता हूँ अपर रूम कलीसिया एक ऐसी जगह बने जहाँ पे यीशु मसीह अपना हृदय हमारे साथ खोले। Oh, the Bible says, he said, my heart is exceedingly sorrowful. Pray with me. यीशु मसीह कहता है कि मेरा जो हृदय निराशा से भरा हुआ है मेरे साथ प्रार्थना करो। One thing Jesus asked his disciples to do, एक चीज जो शिष्य से करने बोली यीशु मसीह ने, pray वही थी with प्रार्थना। me. प्रार्थना करो मेरे साथ, Pray with me. मेरे साथ प्रार्थना करो। That invitation is coming our door today. वो बुलाहट हमारे लिए भी आ रहा है। Pray with me.
मेरे साथ प्रार्थना करो। In the heaven at the right hand of Father, I am praying. स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ पे मैं मध्यस्थी कर रहा हूँ, On the earth, और धरती पे you pray. तुम प्रार्थना कर रहे हो। And whenever two people agree together on one thing and ask, Father will do it. और जब दो लोग सहमति लाते हैं किसी बात पे है तो वो स्वर्ग में किया जाता है। Jesus in heaven praying the things, we on earth praying the same things. Two people agreeing together, Father will do it. यीशु मसीह स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है, हम धरती पे प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम उस चीज पे हामी भरते हैं तो पिता उस चीज को करता है। Church is a place where the future of nation is written. कलीसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे राष्ट्रों का भविष्य लिखा जाता Our है। nation is perishing because church is not praying. हमारा जो भारत है वो डूब रहा है क्योंकि कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही है। Corruption is rising because church is not praying. भ्रष्टाचार है जो बढ़ रहा है क्योंकि कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही है। There are deaths happening because people are not praying. लोग मारे जा रहे हैं क्योंकि कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही है। Judgment is happening because prayers are not happening. न्याय हो रहा है क्योंकि कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही है। Church, today I want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। Would you say, Lord, क्या आप कहोगे प्रभु, would you spare the city for the sake of righteous? क्या तू मेरे सिटी को बचाएगा धर्मी जन के कारण? Like Abraham prayed. जैसे इब्राहिम ने प्रार्थना की। Jesus said, my house will be a house of prayer for nations. यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का जगह होगा I राष्ट्रों want के you लिए। to know, मैं चाहता हूँ आप पे बात समझे। prayer is a lifestyle. जो प्रार्थना का जीवन है वो एक जीवन का God चाल is चलन calling है। us for a higher ground. प्रभु हमें उस बुलाहट के लिए बुला रहा Bible है। says Jesus woke up and spent all night in prayer. वचन कहता है कि यीशु मसीह उठते थे और पूरी रात भर प्रार्थना करते All थे। night in prayer. पूरी रात भर प्रार्थना करते All थे। night in prayer. पूरी रात प्रार्थना करते All थे। night in prayer. पूरी रात प्रार्थना And करते थे। because he prayed all night, और क्योंकि पूरी रात प्रार्थना की miracles and supernatural happened all day. तो जो चमत्कार होते थे वो दिन में होते थे। Church, something is going to happen. कलीसिया कुछ तो होगा। Would you say yes to God to say, Lord, here I am. I want to refresh your heart. क्या बोलोगे, प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, मैं तेरे हृदय को तृप्त करूंगा। I want to be a man of prayer. I want to be a woman of prayer. मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो प्रार्थना करने वाला होगा। Lord, I will give to pray. मैं खुद को दूंगा प्रार्थना के लिए। Prayer moves the hand that moves the world. क्योंकि प्रार्थना उस हाथ को काम करने पे मजबूर करती है जो इस पूरे जगत को बनाता है। Prayer changes things. प्रार्थना चीजों को बदलता है। Prayer moves. प्रार्थना चीजों को बदलता है। Any time apostles prayed, हर बार जब प्रेरितों ने प्रार्थना की things happened. तो कुछ तो हुआ। Whenever Jesus prayed, जहाँ पे यीशु मसीह ने प्रार्थना की things happened. कुछ तो हुआ। Whenever church prayed, जब भी कलीसिया ने प्रार्थना की things happened. तो चीजें हुई। Oh, persecution began to happen in Acts. सताव होने लगा प्रेरितों के काम में। And the apostles prayed. और प्रेरितों ने प्रार्थना की And they said, Father, behold their threatenings. और उन्होंने कहा, पिता देख उनके सताव को। Father, we pray in the name of your holy son Jesus, stretch forth your hand. उन्होंने कहा, पिता तेरे पवित्र बेटे के नाम से प्रार्थना कर, तेरे हाथ को आगे कर May signs and wonders happen. कि चमत्कार होने पाए। Give us boldness to preach the good news. हमको सामर्थ्य दे कि सुसमाचार सुनाने And the पाए। Bible says when they finished praying, और जब वचन कहते हैं जब प्रार्थना करना खत्म हुआ the उनका, place where they were praying shook. जहाँ पे वो प्रार्थना कर रहे थे वो जगह हिलने There लगी। was an earthquake that came. वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया। Oh, there was another time when Peter was in prison and church began to pray. और एक दूसरा वक्त था जब पतरस जेल में था और कलीसिया प्रार्थना As कर a रही थी। result of church praying, an angel went into prison and set him free and brought him out. और जब प्रार्थना करी थी कलीसिया तो स्वर्गदूत गया जेल में, जेल के दरवाजे खोल दिए। Persecution is rising in India. सताव बढ़ रहा है भारत Many देश में। pastors are in jail. काफी पासवान जेल में But है। when church prays, पर things happen. पर जब कलीसिया प्रार्थना करती तो चीजें होती है। Church, God is calling us to pray. पर प्रभु हमको बुला रहा है प्रार्थना करने के His लिए। desire is my house will be a house of prayer. उसकी इच्छा है कि उसका घर प्रार्थना के लिए How जाना many of you चाहेगा। would say, Lord, here am I, baptize me with spirit of prayer? कितने लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे बपतिस्मा दे प्रार्थना करने वाली आत्मा Lord, से। fill me with your Holy Spirit to pray. मुझे तेरी आत्मा से भर दे प्रार्थना करने के लिए। Can you see that when you pray, things happen? क्या आप देख पा रहे हो जब आप प्रार्थना करते हो तो चीजें होती When है। you pray, God moves. जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर कुछ काम If करता an है। Old Testament guy, Abraham, prayed and the destiny of city changed,
changed, what would happen when you pray? पुराने नियम में इब्राहिम जब प्रार्थना कर रहा था और देशों का जो भविष्य बदला जाता था, तो आप प्रार्थना करते हो तो क्या होता है? We are the body of Christ. हम तो उसकी देह है। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं things happen. चीजें होती है। Let us stand upon our place as we bring this message to close. आइए हम खड़े रहे जब हम वचन का अंत कर रहे हैं And we say, God, here I am, O God. और हम कहते हैं प्रभु हम इधर हैं।